Hello everyone. Today's question is, let VR denote the sum of first r terms of an arithmetic progression whose first term is r and common difference is 2r minus 1. Let TR is equal to VR plus 1 minus VR minus 2 and QR is equal to TR plus 1 minus TR. For r equal to 1 to 2, TR is always an odd number or even number or prime number or a composite number. To solve this problem, firstly we need to know the formula for sum of n terms in an AP series is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, where n is number of terms, and a is first term and d is common difference you can say the d as common difference. In the given question they mentioned that VR is the sum of odd terms. Using the above formula we can write VR is equal to r by 2 into, given that the first term is also r and the common difference is 2r minus 1. By substituting above values, we get 2r plus n is r minus 1 into 2r minus 1. Upon further simplification, we get Vr is equal to r by 2 into 2r plus 2r square minus 2r minus r plus 1. Hence we get Vr is equal to r by 2 into 2r square minus 2r square minus r plus 1. In the given question they mentioned that Tr is equal to Vr plus 1 minus Vr minus 2. Substituting this formula in this equation we get Vr plus 1 r plus 1 by 2 into 2 of r plus 1 whole square minus of r plus 1 plus 1 minus r minus 2 by 2 by 2 into r minus 2 whole square minus of r minus 2 plus 1. Hence it is equal to r plus 1 by 2 into 2 into r square plus 2r plus 1 minus r minus 1 plus 1 get cancels minus of r minus 2 by 2 into 2 of r square minus 4r plus r minus r plus 2 plus 1 plus 2 plus 1. Upon further simplification we get r plus 1 by 2 into 2r square plus 4r plus 2 minus r minus r minus 2 by 2 of 2r square minus 8r plus 8 minus r plus 3. Hence we get r plus 1 by 2 into 2r square plus 3r plus 2 minus r minus 2 by 2 into 2r square minus 9r plus 11. It is given that r is equal to 1 comma 2. Now let us find Tr for r equal to 1 value is equal to substitution of r equal to 1 in the above equation we get 1 plus 1 by 2 into 2 of 2 square
1 square plus 3 into 1 plus 2 minus of 1 by 2 into 2 minus r plus 11, which is 0. Hence we get 1 into 2 plus 3 plus 2 is 7 is a prime number. When r is equal to 1, we get tr as prime number. Whenever tr for r is equal to 2 is equal to 2 plus 1 by 2 into 2 of 2 square plus 3 into 2 plus 2 of minus 2 minus 2 by 2 is always a 0. 0 into anything is a 0 is equal to 3 by 2 into 8 plus 6 plus 2 is equal to 3 by 2 into 16 is equal to 24, which is a composite number, and an even number. Hence we can say that tr is maybe a prime number, even number, and a composite number. हेलो, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 का सम ऑफ इंटीजर डाटा डिविजिबल बाई 2 और 5. ओके, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि नंबर या इंटीजर्स. सबसे पहले हम लिखते हैं इंटीजर्स डाटा डिविजिबल बाई 2. क्या क्या होगा? 2, 4, 6, 8.98 और 100 तक. ठीक है, तो इसका सम क्या होगा? इसका सम लेट्स सपोज हम S1 बोल रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे? 50 डिवाइडेड बाई 2. अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं. 100 लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस डिफरेंस क्या है 2 का, तो 98 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू n, यानी कि 50. ओके, फर्स्ट टर्म 2, लास्ट टर्म 100. ओके, तो ये हो जाएगा, इनटू करेंगे तो 50 प्लस 2500, तो ये हो जाएगा 2550. ओके, ये सम हो गया जो 2 से डिविजिबल है. ठीक है, अब इंटीजर्स डाटा डिविजिबल बाई 5. ठीक है, अब 5 से जो डिविजिबल है वो क्या क्या होंगे? 5, 10, 15, 20, 95, 100. ओके, लेकिन हम ऑलरेडी किसका सम निकाल चुके हैं? जो भी इवन नंबर आएगा इसमें, यानी जैसे कि 10, 20, 100, ये सबका हम सम ऑलरेडी कर चुके हैं 2 के साथ. ओके, तो जो नंबर हमको ऐड करना है और वो 5 के टेबल से भी डिविजिबल, वो क्या होगा? 5, 15, 25, 95 तक. ओके, तो इसका सम हम निकालते हैं. क्या होगा? इसका सम को हम लेट कर रहे हैं S2. क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 10 बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. ओके, तो इसका वैल्यू क्या होगा देखते हैं. 10 बाई 2 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 500. ओके, तो हमें सम ऑफ इंटीजर्स बताने हैं. टोटल सम ऑफ इंटीजर्स क्या होगा? टोटल सम ऑफ इंटीजर्स क्या होगा? S1 प्लस S2, यानी जो 1 से डिविजिबल, जो 2 से डिविजिबल है और जो 5 से डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा 2550 प्लस 500. ओके, तो आंसर मेरा क्या हो गया? 3050. ये मेरा क्या हो गया? आंसर. तो ऑप्शन देखें तो कौन सा है?
ऑप्शन सी 3। ओके, थैंक यू। इस क्वेश्चन में बोल रहा है द फोर्थ पावर ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन with integer entries is added to the product of any 4 consecutive terms of it. Prove that the resulting sum is the square of an integer. तो सॉल्व करते हैं। तो लेट्स से उस AP का कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस वो है D। ओके, कॉमन डिफरेंस मैंने क्या जूम कर लिया, D क्या होगा, एक इंटीजर होगा, बिकॉज जो AP है वो उसमें सिर्फ इंटीजर एंट्रीज ही है। सो कॉमन डिफरेंस D मान लिया। अब लेट्स से जो 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स है, उन्होंने बोला प्रोडक्ट ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स, तो लेट्स से वो 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स मैं मान लेता हूँ A1, A2, A3 एंड A4। अब क्योंकि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, सो A2 क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा A1 प्लस D, राइट। उसके बाद A3 क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा A1 प्लस 2D, और A4 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा A1 प्लस 3D, राइट। कोई भी 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स मैंने ले ली, तो A1, A2, A3, A4 अगर 4 कंसेक्यूटिव टर्म है तो A2 विल बी A1 प्लस D, A3 विल बी A1 प्लस 2D एंड A4 विल बी A1 प्लस 3D। अब हमें क्या बोल रहा है कि फोर्थ पावर ऑफ कॉमन डिफरेंस दैट इज D रेज टू पावर 4, इसमें हमने ऐड कर दिया प्रोडक्ट ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स, मतलब A1, A2, A3, A4। सो A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू A4, और इसको लेट से मैंने ऐसे अज्यूम कर लिया। तो प्रूफ क्या करना है हमें, रिजल्टिंग सम जो होगा वो स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर होगा, तो S को हमने एक इंटीजर के स्क्वायर की फॉर्म में प्रूफ करना है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, S विल बी इक्वल टू D रेज टू पावर 4 प्लस A1 इंटू A2। A2 क्या है मेरे पास, A1 प्लस D है, सो A1 प्लस D। A3 क्या है, A1 प्लस 2D एंड A4 क्या है, A1 प्लस 3D। ओके, तो यहाँ से S आ जाएगा, S इज इक्वल टू D रेज टू पावर 4 प्लस, लेट से A1 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ A1 प्लस 2D के साथ, तो क्या आ जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A1 इंटू 2D हो जाएगा 2A1D। ओके, तो इस टर्म को और इस टर्म को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब बच्ची ये दोनों टर्म्स, इन दोनों टर्म्स को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A1 इंटू 3D, सो 3A1D प्लस D इंटू A1, सो A1 टाइम्स D प्लस D इंटू 3D, सो प्लस 3D स्क्वायर। ओके, ये मेरे पास आ जाएगा। यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो S विल बी D रेज टू 4 प्लस A1 स्क्वायर प्लस 2A1D इंटू A1 स्क्वायर प्लस 3D स्क्वायर प्लस 3A1D प्लस A1D क्या हो जाएगा, 4A1D हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, S इज इक्वल टू D रेज टू पावर 4 प्लस, अब इसको भी एक्सपेंड कर देंगे, A1 स्क्वायर इंटू A1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, A1 रेज टू 4 प्लस A1 स्क्वायर इंटू 3D स्क्वायर हो जाएगा 3 टाइम्स A1 स्क्वायर इंटू D स्क्वायर, A1 स्क्वायर इंटू 4A1D हो जाएगा 4 इंटू A1 क्यूब इंटू D, राइट, 4A1 क्यूब इंटू D प्लस 2A1D इंटू A1 स्क्वायर हो जाएगा 2A1 क्यूब D, 2A1D इंटू 3D स्क्वायर हो जाएगा 6D क्यूब इंटू A1, 2A1D इंटू 4A1D हो जाएगा 8A1 स्क्वायर D स्क्वायर, राइट। तो ये मेरे पास क्या आ गया, S आ गया। अगर मैं टर्म्स को कंबाइन करके लिखूं, S विल बी इक्वल टू D रेज टू 4 प्लस A1 रेज टू 4, सो D रेज टू 4 प्लस A1 रेज टू 4 प्लस 3A1 स्क्वायर D स्क्वायर, 8A1 स्क्वायर D स्क्वायर हो जाएगा 11A1 स्क्वायर D स्क्वायर, 4A1 क्यूब D प्लस 2A1 क्यूब D हो जाएगा 6A1 क्यूब D प्लस 6D क्यूब A1, सो 6D क्यूब A1। यहाँ से S कैन बी रिटन एज D रेज टू पावर 4 प्लस A1 रेज टू पावर 4 प्लस 11A1 स्क्वायर D स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 9A1 स्क्वायर D स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A1 स्क्वायर D स्क्वायर प्लस 6A1 क्यूब D प्लस 6D क्यूब A1, राइट। ये मेरे पास आ जाएगा। तो यहाँ से S को मैं लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा D स्क्वायर का स्क्वायर
प्लस ये हो जाएगा मेरे पास a1 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3a1d का होल स्क्वायर, राइट, प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू a1 स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू a1 स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 3a1d, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू डी स्क्वायर इंटू 3a1d। ओके, अब लेट से यहाँ से डी स्क्वायर को मैंने एज्यूम कर लिया कैपिटल A, ओके, a1 स्क्वायर को एज्यूम कर लिया कैपिटल B और 3a1d को एज्यूम कर लिया कैपिटल C। अब अगर a1 एक इंटीजर था तो a1 स्क्वायर विच इज b भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। d एक इंटीजर था तो d स्क्वायर मतलब a वो भी एक इंटीजर होगा। a1 और d दोनों इंटीजर थे तो a1 इंटू डी भी इंटीजर होगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे वो भी इंटीजर होगा, तो c भी क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। सो यहाँ से s मेरा क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी प्लस 2 टाइम्स a1 स्क्वायर इज b, 3a1 टाइम इज c, so 2bc प्लस 2 इंटू ac, राइट। यहाँ पे a b c तीनों क्या हैं, इंटीजर हैं, बिकॉज a1 एंड d भी दोनों क्या थे, इंटीजर थे। सो यहाँ से s क्या आ जाएगा, ये लिखा हुआ है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, राइट। a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, राइट। तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ से s क्या आ गया मेरा, s मेरा आ गया a प्लस b प्लस c का स्क्वायर। अब a b और c तीनों क्या थे, इंटीजर थे, तो a प्लस b प्लस c वो भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। लेट्स से उसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ अल्फा। सो s इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर वेयर अल्फा इज एन इंटीजर, ओके, अल्फा इज एन इंटीजर। यही मेरे को प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। थैंक यू। हेलो गाइस, हाउ आर यू, कैसे हो। इस क्वेश्चन में को दे रखा है कि एक एपी है जिसके सभी जो टर्म्स हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। अगर फर्स्ट 7 टर्म्स का जो सम है, ठीक है, और जो फर्स्ट 11 टर्म्स का सम है उनकी रेशो 6/11 है और 7th टर्म जो है वो 130 और 140 के बीच में लाई करती है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा एपी का। देखो, जो फर्स्ट टर्म है मैं उसको ए ले लेता हूँ, कॉमन डिफरेंस को डी ले लेता हूँ, ठीक है। सम ऑफ 7 टर्म्स, ठीक है, यानी कि 1 प्लस ए प्लस a7, हाँ, सम ऑफ 7 टर्म्स यानी कि a1 प्लस a7 इंटू 7/2, वो होता है ना, सम होता है कि n/2 इंटू a प्लस l लास्ट टर्म, ठीक है। और सम ऑफ 11 टर्म्स क्या होगा, a1 प्लस a11, ठीक है। ये है मेरे पास 6/11 के इक्वल, ठीक है। अब a1 प्लस a7 क्या होगा, a1 तो a हो जाएगा, a7 क्या होगा, a प्लस 60, ये हो जाएगा 2a प्लस 60। उसी तरह से ये क्या होगा, a प्लस 10d यानी कि 2a प्लस 10d, ठीक है। इसको यहाँ पे पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 7 से 7 कट जाएगा, ये इससे ये कट जाएगा, तो मेरे पास आएगा 7 इंटू 2a प्लस 6d अपॉन 2a प्लस 5d इक्वल टू 6, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे पूरे को तो आपके पास आएगी a की वैल्यू 9d, ठीक है। और मुझे दे रखा है कि जो a7 है वो 140 और 130 के बीच में है, ठीक है। अब a7 क्या था, आपको अगर हम देखा हो तो a7 है मेरे पास a प्लस 6d और a की वैल्यू 9d आई है, तो इसको ऐड करोगे तो 9d प्लस 6d कितना हो जाएगा, 15d, यानी कि जो 15d है वो इनके बीच में है, तो 130 स्मॉलर देन 115d 140, ठीक है। इस हिसाब से d की वैल्यू आएगी 8 2/3 और इसके बीच में, ठीक है। इसके बीच में एक ही नेचुरल नंबर है वो है 9, तो d की वैल्यू आएगी 9, तो ये है मेरा कॉमन डिफरेंस, ठीक है गाइस। ओके, थैंक यू। The question is, a pack contains n cards numbered from 1 to n. 2 consecutive numbered cards are removed from the pack and the sum of the numbers on the remaining cards is 1224. If the smaller
of the numbers on the remove card is k, then k minus 20 is equals to, so let's start. So first of all we know that sum of first n natural number, it will be equals to, we know that it will be equals to n into n plus 1 divided by 2. Why we can write this? Because our pack of card contains n cards from 1 to n. So we can write sum of first n natural number, because by using this we can calculate the value of k minus 20. So now we can write, we have given the sum of the numbers of the remaining cards, that is 1224. So now if we can remove, so and we have also given the our smaller of the numbers on the card removed, that is k. So now there is an important point. So if we know that our smaller number is k, then it's greater than something from k, is we can write k plus 1. So if we subtract the total number of cards, if we subtract from the total number of cards, that is we can write n into n plus 1 divided by 2. If we subtract the cards that is smaller at the just smaller than our k, that is we can write minus k plus 1, that will be equals to how many? Remaining of the sum we have 1224. So now from here we can write our value after solving this, n into n plus 1 divided by 2, that will be minus, after solving this we have minus 2k is equal to 1225. We can say this will be our equation number first. So now we can also write, n into n plus 1 divided by 2 minus, if we subtract from it 2n minus 1. Why? It is because we know that when we have k is equal to n minus 1, that will be greater than 1224, and it is less than the sum of the total number of cards that we have given from 1 to n, then we can write it will be less than n into n plus 1 divided by 2. So now we can write, when we have k is equal to 1, when we put k, the value of k is equal to 1, this will be our k is equal to 1. Then we can write finally, after solving this, it gives us n square minus 3n plus 2. After taking the LCM of this, we get this n square minus 3n plus 2 divided by 2. That will be less than, we know that will be less than with 1224, and we know that will be less than to our total number of cards, that is from 1 to n. So now from 1 to n we can write our n square plus n minus 6, that will be divided by 2 after putting the value of k is equal to 1. Then we have finally this. So now after solving it, from here we get n minus 2 into n minus 1. By making the factor of this quadratic equation, we get the factor, that is n minus 2, n minus 1, that will be less than 1448. By solving this, we have to remove 2, so we have to multiply it with 2, and after multiplying it with 2, so we can write multiplying both sides by 2, then we get this. Now finally we get 1448, that will be less than 2 will be cancelled out, and after making the factor of this quadratic equation we have n minus 2 into n plus 1. So now if we put our value, there is an important point, if we put our value of n, that will be equals to 50, then we get n minus 50, we have 1 into 51, that is multiplied 50 by 2 minus 2k, that will be equals to 1225. After solving this by putting the value of n is equal to 50, then we get our equation like that. So now after solving it, it gives us 1275. After taking the LCM and by cross multiplying, we get 1275 minus 2k, that will be equals to 1225. Finally from here we get the value of k, that will be equals to 25. So now we can say
we have to find out the value of k minus 20. We have to find out the value of k minus 20 we see in our question. So now we can say we know that our value of k we have 25, then we have 25 minus 20, that will be equals to 5. So we can say this will be our required value and our final answer of this question, that is equal to 5. Thank you.